The Serpent Seed. This message by Brother William Marion Branham, originally delivered in English on Sunday evening, September 28, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. सांप की नस्ल. ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानिब से बुनियादी तौर पर इंग्लिश में इतवार की शाम 28 सितंबर 1958 ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनविल इंडियाना यूएसए में दिया गया. God, the great and mighty God, who formed all things by the power of His Spirit and has brought Jesus Christ, His only begotten Son, who freely died for we sinners, the just for the unjust, to reconcile us back into this marvelous fellowship that we have again with God. प्यारे खुदा, अजीम और कादर मुतलिक खुदा, जिसने अपनी रूह की कुदरत के जरिए सारी चीजें तख्लीक की हैं और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को लाया है, जो हम गुनाहगारों की आजादी के लिए मरा, रास्तबाज नारास्तों के लिए, ताकि हमारी दोबारा खुदा के साथ सुलह और रफाकत कराए. As we are taught in the blessed word that we had fellowship with Him before the foundation of the world, when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. Way back before the foundation of the world. जैसे कि हम बाबरकत कलाम में देख चुके हैं, जैसा कि दुनिया के बनाए जाने से पेशतर हमारी उसके साथ रफाकत थी, दुनिया के बनाए जाने से पेशतर जब सुबह के सितारे मिलकर गाते और खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे, दुनिया की बुनियाद से पहले ही वापसी की राह. How do we know that that wasn't at the same time that the Lamb was slain? That when God in His great thinking seen us shouting and rejoicing in our salvation through Jesus. हम कैसे जानते हैं कि उस वक्त बिल्कुल यही वक्त ना था कि वो बरा ज़बा हुआ था, कि जब खुदा अपनी अजीम सोच में हमें नारे लगाते और खुशी करते हुए हमारी निजात को यीशु मसीह के जरिए देख चुका था. And tonight we're only got a foretaste of that great glory divine which shall be revealed at His second coming. और आज रात हम सिर्फ उसकी अजीम जलाली आसमानी खुशी से पेशगी लुत्फानंदोज होते हैं, जो वो अपनी आमदे सानी पर हम पर जाहिर करेगा. All sickness and sorrow will be done away with. Then we'll have a body like His own glorious body, for we shall see Him as He is. तमाम बीमारियां और दुख इसके साथ दूर हो चुके होंगे. फिर हमारा बदन उसके जलाली बदन की तरह होगा, हम उसे देखेंगे जैसा वो है. Here as we look at our hands are withering, our hairs turning gray and shoulders stooping, we're aware that we're mortals and headed towards the dust from which our heads are bowed now and where we come from. और जब हम यहाँ अपने जुरीदार हाथों को और सफेद होते हुए बालों को और झुके हुए कंधों को देखते हैं, हम जानते हैं कि हम फानी हैं और मट्टी की तरफ से हैं, जिसकी तरफ हमारे सर झुके हुए हैं और हम जहाँ से आए हैं. But Lord God, just as sure as you are God, you made a promise that we'd be raised up again in the last days, and we believe it. लेकिन खुदावंद खुदा, जैसा कि हकीकत है, तू ही खुदा है और तूने वादा किया कि हम आखिरी दिनों में फिर उठ खड़े होंगे, और हम इस पर ईमान रखते हैं. Solemnly we stand with our faith tonight in Thy presence, coming with boldness because that Jesus bid us to do it. अकीदत के तौर पर हम अपने ईमान के साथ आज इसकी हजूरी में खड़े हुए हैं और बड़ी दलेरी के साथ आते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें ऐसा करने की दावत दी है. Not upon any good thing that we have done, for we've done nothing right, but we come humbly professing that we own this treasure because of His grace that's been allotted to us. ना ही किसी अच्छे काम पर जो हम कर चुके हैं, इसलिए कि हमने कुछ ठीक किया ही नहीं, लेकिन हम इकरार करते हैं और हम अपने उस खजाने से जो कि उसने अपने फजल की बदौलत हम पर कसरत से किया है, फरोतनी से आते हैं. Therefore we come asking that you'll bless us tonight in the bringing forth of the word.
For it is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. इसीलिए हम आते हुए मांगते हैं कि आज रात तू कलाम को सामने लाकर उसके वसीला से बरकत देगा, क्योंकि ये लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। And let the mouth of God be spoken tonight. Let the words come forth and may it go deep into the hearts of we the listeners and be filled with thy spirit in thy presence, for we asked it in Jesus' name. Amen. और आज रात भी खुदा के मुंह ही से बोला जाना है। कलाम को आगे आने दें और ये हमारे दिलों पर गहरे तौर पर उतर जाए, सुनने वाले बने और उसकी रूह में और उसकी हजूरी में भर जाएं। हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Today and yesterday, last night rather, and today we have been speaking on the subject, first to head up, why we are not a denomination. आज और कल, गुजरी रात, बल्कि आज हम इस उन्वान पर बातचीत कर चुके हैं। पहले इस बात पर कर रहे थे कि हम एक तंजीम क्यों नहीं हैं। And we have made it rather strong why we're not a denomination. Why we do not believe in denominations. Because we find it in the Bible that denominations was never ordained of God. It was ordained of the devil. And proved it by the Bible. बल्कि हमने इसे अच्छे तरीके से सीखा। क्यों हम एक तंजीम नहीं हैं और क्यों हम तंजीमों पर ईमान नहीं रखते, क्योंकि हम बाइबल में पाते हैं कि तंजीमें खुदा की तरफ से कभी मुकर्रर ना थीं, ये शैतान की तरफ से मुकर्रर थीं और इसे बाइबल ने साबित किया है। And how the true denominations brings forth error. Now we're saying this to correct and to bring this tabernacle into a fellowship around the blessed Word of God. और कैसे तंजीमों के जरिए गुनाह आया। अब हम कह रहे हैं कि इसे दुरुस्त कर लें और इसको टैबरनेकल में खुदा के बाप बरकत कलाम की रफाकत के चौगिर्द लाएं। That our hopes is not built in what denomination says or what any man says. It's built upon what the Lord God has said. And that's the only way we can ever be corrected right. जैसा कि हमारी उम्मीदें इस बात पर तामीर नहीं कि तंजीम क्या कहती है या कोई इंसान क्या कहता है, बल्कि ये इस बात पर तामीर है कि खुदावंद खुदा ने क्या कहा, और सिर्फ यही रास्ता है जिससे हमें बिल्कुल दुरुस्त होना है। And this morning I had 5, I believe, different articles that's come out through denomination that's absolutely not spoke of in the Bible, that the Protestant churches are bowing down to. और इस सुबह मेरे पास 5 मुख्तलिफ मजमून थे, मेरा यकीन है, जो कि तंजीम के जरिए आए, जो कि बिल्कुल बाइबल में नहीं बोले गए, जो कि प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने मजहबी तालीम देने के लिए डाले हैं, और इसके पीछे हम झुके जा रहे हैं। And teaching for doctrine the same thing that the old mother prostitute Catholic Church preaches, and come out into the Protestant church and we bow to the same thing which is contrary to anywhere in God's Word. बिल्कुल वही चीज जो कि उस पुरानी माँ कस्बी कैथोलिक कलीसिया ने बयान की और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं उसके पीछे हो ली, और हम ऐसी ही चीज के सामने झुक जाते हैं जो खुदा के कलाम में कहीं भी तजाद डालती है। The first denominational church, we looked it up this afternoon in the Nicene Fathers' history of the Nicene Church. At the death of the apostles, there what come the Nicene Fathers, and they went on for several years. पहली तंजीमी कलीसिया जो कि नासिया की कलीसिया है, हम इसे इस दोपहर नासियों के फादर की तवारीख में देख चुके हैं, जो रसूलों की मौत के बाद आए। जो नासियन फादर वहां आए, वो बहुत सालों के लिए उन पर मुकर्रर रहे। 325 years finally came to Nicaea, France, where they had the great Nicene Council. आखिरकार 325 ईस्वी को फ्रांस नासिया आए, जहां उन्होंने अजीम नासियन कौंसिल बनाई। And in there they formed these dogmas that the Catholic Church has now, and also that's handed down to the Protestants. और वहां उन्होंने ये सारे अकीदे रस्में बनाई जो कि अब कैथोलिक कलीसिया में हैं,
और इसी तरह वो प्रोटेस्टेंट कलीसिया में भी मुंतकिल हो गईं। And as I said in the teaching this morning, each one of those church ages on up to that Thessalonica church age, the 1500 years of dark ages, there was not one time but what he said, you still have my name. और जैसा मैंने आज शुभ सिखाते हुए कहा, हर एक उस कलीसिया जमाने की जो उसके ऊपर आया, जैसा कि तसालिकियों की कलीसिया का जमाना 1500 साल तारीकी के अदवार में, यहाँ खुदावन ने एक मर्तबा भी नहीं कहा कि तू मेरे नाम पर कायम है। And on this other side, they wasn't in Christ anymore. They come out in a denominational name: Catholic, Luther, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, on down. और इस दूसरी तरफ अब वो मसीह में नहीं थे, वो एक तंजीम के नाम से बाहर आए: कैथलिक, लूथर, वेस्ली, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, नीचे तक। But just before the closing of the age, he said, I set before you an open door. See? लेकिन सिर्फ जमाने के इख्तिताम से पहले उसने कहा, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, समझे? And that's the age that we believe we're in right now. The open door age between the last going out of the Laodicean church. और यही जमाना है, हम ईमान रखते हैं कि अब ठीक इसी में हैं, खुले हुए दरवाजे के जमाना में, जो कि लौदीकिया की कलीसिया के जमाने के दरमियान आखिरी बार गुजर रहा है। And it's exactly 325 years to the Laodicean Council. और ये बिल्कुल ठीक 325 ईस्वी से लौदीकिया की काउंसिल तक है। And in there they adopted these forms such as sprinkling, pouring, and false baptisms, false Holy Spirit, all these other things. They adopted it. जहां उन्होंने इन इकसाम को अपनाया, जैसे कि छिड़काव करना, पानी डेलना और झूठे बपतिस्मे, झूठा रुलकुस और ऐसी तमाम दूसरी चीजें, उन्होंने इसे अपनाया। And then when Luther, being a priest and come out of the Catholic Church, brought these things with it. और फिर जब लूथर एक राहब होने के नाते कैथोलिक कलीसिया से बाहर आया, तो अपने साथ इन चीजों को लाया। And out of there comes Zwingli, out of Zwingli come Calvin, out of Calvin come Wesley, all on down. And they just keep bringing those dogmas down. और जोंगली बाहर आया, जोंगली के बाद कैल्विन आया, कैल्विन के बाद वेस्ली बाहर आया, हो नीचे तक आते रहे और वो इन तमाम अकीदों को लाए। And how can God lead His church when they're following roads that He never even brought out for them to be led on? और खुदा कैसे अपनी कलीसिया की रहनुमाई कर सकता था, जबकि वो उस रास्ते की पैरवी कर रहे हैं जो कि वो कभी भी नहीं लाया कि उन्हें उस पर चलना है। And remember in Revelation 17 we found the woman. Now these words are plain, they're written in the Bible, so I guess I can say them. और याद रखें, मुकाशवा 17 में हम एक औरत को पाते हैं। अब ये अल्फाज सादा हैं, वो बाइबल में लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया, मैं इन्हें कह सकता हूँ। It said this woman was a whore. That means that she was an ill-famed woman. That she's supposed to be married to a husband and committed fornications with the world. उसने कहा, ये औरत एक कस्बी थी। इसका मतलब है कि वो एक बदनाम औरत थी, जैसा कि उसे एक शोर वाली होना था और उसने दुनिया के साथ जना का नाता जोड़ा। And she was a mother of harlots, therefore she had daughters. और वो एक थी, वो कस्बियों की माँ थी, इसलिए कि उसकी बेटियां थी। And we have geographically drawn that. Being there myself, seeing it in the Scripture, seeing their doctrines and everything, I believe the Lord has perfectly laid it on the line that there can't be nothing else but the Catholic Church. It's the only way it can be. और हम जुग्राफियाई तौर पर इस पर तवज्जो दे चुके हैं। इस नाते मैं यहाँ खुद इस कलाम मुकद्दस में देखता हूँ, इसकी तालीमात और सब कुछ देख रहा हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावन ने मुकम्मल तौर पर इसे इसकी कतार में रखा है, जैसा कि ये कैथोलिक कलीसिया के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। सिर्फ इस तरीके से यही हो सकती है। And what did she give birth to? The Protestant churches. Exactly she did. और क्या हुआ? उसने किसको जन्म दिया? ठीक वक्त पर उसने प्रोटेस्टेंट कलीसिया को जन्म दिया। And she had in her hand a cup of the wine of her fornications. And she was giving it to the kings of the earth, and she was a ruler over all the earth, spiritually speaking. And that's exactly right. और इसके हाथ में इसकी जनाकारी से भरा हुआ एक मै का प्याला था और वो उसे जमीन के बादशाहों को दे रही थी और वो रूहानी बातचीत करती और सारी जमीन पर हुक्मरानी करती थी और ये बिल्कुल ठीक है। There's not another, look, let's
this, we could go back to Daniel and get the image. Look at the image. The head of gold, the Babylonian kingdom. Brass or silver, Medo-Persia. इसके अलावा दूसरी नहीं। देखें, हम दानियल में वापस जाते हैं और एक मूरत को हासिल करते हैं। मूरत की तरफ देखें, सोने का सर, बाबल की बादशाहत, पीतल, बल्कि चांदी, मादी फारसी हुकूमत। Brass, Alexander the Great and so forth, the Grecian kingdom. Then the Roman empires, Eastern and Western Rome, the 2 feet. पीतल, सिकंदर आजम और इसके आगे यूनानी बादशाहत, फिर रोमन हुक्मरानी, मशरकी और मगरबी रोम जो के 2 पांव हैं। And notice, in these 10 kingdoms, which exactly comes to those 10 horns that we were speaking of this morning, in each one of those 10 kingdoms that was to rise, there was iron and clay mixed together. और इन 10 बादशाहियों पर तवज्जो कीजिए जो कि बिल्कुल इन 10 सिंगों के साथ आईं, जिस पर हम सुबह बातचीत कर चुके हैं। इन 10 बादशाहियों में हर एक उठ खड़ी हुई थी। वहाँ लोहा और मट्टी को आपस में मिला दिया था। And that iron come from the lakes, which was Rome, and there's a streak of Romanism mixed in every nation there is under heaven through the Catholic Church. It's exactly right. And they would not mix anywhere. और वो लोहा टांगों की तरफ से आया जो कि रोम था। आसमान के तले जितनी कौमें थीं, वो कैथोलिक कलीसिया के जरिए रोमन इज्म में मखलूत हो चुकी थी। ये बिल्कुल ठीक है। वो किसी भी तरह इसे अब मखलूत ना कर पाएंगे। And they'd intermarry among one another. The Bible said they wouldn't look at them today. Your boy goes with a Catholic girl. When they go to get married, they have to promise to raise the children Catholic. See? Vice versa. See, it's to break the power of the other. और उन्होंने एक दूसरे के दरमियान मखलूत शादियां कर ली थी। बाइबल ने कहा वो करेंगे। और आज उनमें देखें, आपका लड़का एक कैथोलिक लड़की के साथ जाता है। जब वो शादी कर लेते हैं तो वो वादा करते हैं कि उनके आने वाले बच्चे कैथोलिक होंगे। समझे? इसके बरक्स कुछ नहीं, लड़की को भी इसी तरह करना पड़ता है। समझे? बस ये दूसरों की ताकत को तोड़ना है। But what is it? The Bible claims the whole thing's a prostitute. Now what are you going to do? That's right. लेकिन ये क्या है? बाइबल दावा करती है कि तमाम चीजें एक कस्बी की मानिद हैं। अब आप क्या करने जा रहे हो? जैसा कि ये ठीक है। And how the sins of the people will be visited. We went back in Deuteronomy and showed that an illegitimate child, bastard child, could not even enter the congregation of the Lord for 14 generations. और लोगों के गुनाहों का क्या इंजाम होगा? हम वापस अशिष्णा में जाते हैं और एक जना से पैदाशुदा आरामी बच्चे को देखते हैं। यहाँ तक कि 14वीं पुश्त तक खुदावंत की जमात में दाखिल नहीं हो सकता था। That was under the law. And Christ come to magnify the law. How much more is it now? वो शरीयत के मुताबिक था और मसीह शरीयत को बुलंद करने आया। अब उसने इसे कितना ज्यादा बुलंद किया। And what's happening to these? What's the matter with these little flappers on the street today? These little cigarette-sucking women and short-wearing, bob-haired flappers and so forth. इन छोटे बच्चों के साथ आज जो गलियों में घूमते हैं, इसी तरह ये सिगरेट पीने वाली औरतें और छोटे कपड़े पहनने वाली, कटे बाल और फड़फड़ाने वाली, इनके साथ क्या होने जा रहा है? What's the matter with it? It's because her mammy acted like that. It's visit the iniquity from one generation to the other. That's what it is. इनके साथ क्या मसला है? सबब क्योंकि इनकी माँ भी ऐसा ही करती थी। ये गुनाह है जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जा रहा है। यही है। And what have we got? We've got to a place that's a conglomeration of nothing but messy sin. और हमने क्या पाया? हम एक ऐसी जगह को जो कि सिर्फ एक ढेर नहीं बल्कि गुनाहों का अंबार है पा चुके हैं। That's the reason God's raised up Russia yonder with an atomic bomb to wipe her off like the antediluvian flood was when He raised the clouds. Sure He has. And the Bible says so. यही सबब है कि खुदा ने वहाँ एक जोहरी बम के साथ रूस को उठा खड़ा किया कि उसे तबाह कर दे, जैसा कि ये तूफान नूह में हुआ था जब उसने बादलों को खड़ा किया। यकीनन वो करता है और इसलिए बाइबल कहती है Russia, the atheistic country as they are atheistic, has absolutely playing just exactly in the hands of Almighty God. रूस दैरिया मुल्क है जैसे कि वो दैरिये हैं, मगर इसका भी दारोमदार कादरे मुतलिक खुदा के हाथ में है। Just as King Nebuchadnezzar was to destroy Israel because they failed to walk with God, Russia's raising right up to avenge the saints of the Catholic Church of the blood that she shed of the saints. The Bible said so. Let's go take the whole thing. इसी तरह जैसे नबूकतनजर बादशाह ने इसराइल को तबाह किया था क्योंकि वो खुदा के साथ चलने में नाकाम हो गए थे,
रूस को इसलिए खड़ा किया कि वो मुकद्दसों का बदला कैथोलिक कलीसिया से ले, उस खून का जो उसने मुकद्दसों का बहाया था। इसी तरह बाइबल कहती है वो सारी चीजों का हिसाब लेने जा रहा है। So look here, if their mother was a coarse girl, and their grandmother, and her mother was a flapper, what's she today? A rock and roll striptease. What's her children going to be? इसलिए यहाँ देखें, अगर उसकी माँ एक गाने वाली थी और फिर उसकी दादी और इसकी परदादी एक फड़फड़ाने वाली औरत थी, और आज क्या है, एक नाचने और गाने वाली, तो इसके बच्चों को कैसा होना है? And you say, does God do that? Yes, sir. God visits the iniquity of the children, the generation, even the 14 generations. और आप कहते हैं तो खुदा क्या करता है? हाँ जनाब, खुदा औलाद के गुनाह को नस्ल दर नस्ल, यहाँ तक के 14वीं नस्ल तक पाता है। And if Christ come to magnify it, we'd say 100 generations or 500 generations. और अगर मसीह से बढ़ा दे, हम कहेंगे 100 नस्लों या 500 नस्लों तक। Why, he said them of old, you've heard him say them of old time, thou shalt not kill. I say, you who's ever angry with his brother, without a cause is killed already. क्यों यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था तू खून ना करना। मैं कहता हूँ, तुम जो किसी सबब के बगैर अपने भाई के साथ हसद करते हो, वो उसे पहले ही कत्ल कर चुके। You've heard him say them of old times, thou shalt not commit adultery. But I say that who looks upon a woman to lust after her has committed adultery already. तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था तू जना ना करना, लेकिन मैं कहता हूँ जिसने बुरी निगाह से एक औरत को देखा वो पहले ही जना कर चुका। He made it once magnify, make it many times bigger. And if under the law there's 14 generations, how long will it take the same thing today? उसने कितनी दफा बढ़ाया? उसने कई मर्तबा से बढ़ाया, और अगर शरीयत के मुतहत ये 14वीं नस्ल थी तो आज ये चीजें कितनी नस्लों तक जाएंगी? And young man and middle-aged man and married man have no more respect for their marriage vows. Why, they just take women and live with them anywhere and just like common dogs. जवान मर्द, दरमियानी उम्र के मर्द और शादीशुदा मर्दों के लिए इनकी शादी के अहदो पैमा की कोई कदर नहीं रही, क्योंकि इसलिए कि वो औरतें लेते और उनके साथ कहीं भी आम कुत्तों की तरह रहते हैं। A dog's got better respects and better morals than some people have. I know that's awful strong, but that's right. बानिस्बत कुछ लोगों के एक कुत्ता बेहतर इज्जत करता और बेहतर इखलाक रखता है, और मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक बात है, लेकिन ये दुरुस्त बात है। Why? And the churches go right along and say nothing about it. Why? They're acting just like their mammy does. क्यों? कलीसियाएं ठीक इसी के साथ जा रही हैं और इसके बारे में कुछ नहीं कहती। क्यों? वो बिल्कुल वैसा ही अमल कर रही हैं जैसा उनकी माँ करती थी। The church is inherited. Cause the church and this Protestant church come out of the Catholic Church, the sins of the Catholic Church is visited upon the Protestants. Certainly it is. So pot can't call kettle dirty. It's exactly true. कलीसियाएं इसको विरासत में ले चुकी हैं, क्योंकि सारी कलीसियाएं और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं कैथोलिक कलीसिया से बाहर आई हैं। कैथोलिक कलीसिया का गुनाह प्रोटेस्टेंट के ऊपर आता है, यकीनी तौर पर ये ऐसा ही है। तो प्याला केतली को नहीं पुकार सकता कि तू गंदी है, ये बिल्कुल सच है। Now we find out it in the scripture. We found out, and I never seen it note on the table here tonight. I said, show me one place where God ever ordained a denomination. Show me one place where God ever ordained a woman preacher. अब हम कलाम मुकद्दस में पाते हैं, हम देखते हैं, और मैंने आज रात कोई भी कागज मेज पर नहीं पाया। जैसे मैंने कहा था, मुझे एक भी जगह दिखाओ जहां खुदा ने एक तंजीम को मखसूस किया। मुझे एक भी जगह दिखाओ जहां खुदा ने एक औरत को मनाद मखसूस किया। Show me one place where God ever ordained sprinkling. Show me one place where God ever ordained pouring. Show me one place where God ever had anybody baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. मुझे एक भी जगह दिखाओ जहां खुदा ने छिड़काव करना मखसूस किया। मुझे एक भी जगह दिखाओ जहां खुदा ने पानी अंडेलने को मखसूस किया। मुझे एक भी जगह दिखाओ जहां किसी को बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दिया गया हो। Find those things. And yet we constantly do them. It's just right down the church. इन चीजों को तलाश करें, और अभी तक हम मतवातर इन कामों को करते हैं। इस तरीके ने ठीक कलीसिया को ज़ेर किया। Now,
I said, the reason we couldn't be Baptists, because we believe in being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. There's no one ever in the Bible baptized any other way. अब मैंने कहा, इसी सबब से हम आपके तरीके से बैप्टिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में लेना है. इसके अलावा बाइबल में बपतिस्मा देने का कोई तरीका नहीं है. You show me one place where one person is baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost, I'll raise my hands and say I'm a false prophet. आप मुझे एक भी जगह दिखाएं जहां किसी को बाप बेटे रूल कुछ के नाम में बपतिस्मा दिया था, मैं अपने हाथों को उठा लूंगा और कहूंगा मैं एक झूठा नबी हूं. And if the Bible says you must be baptized in the name of Jesus Christ, that means you must do it that way. Paul commanded them to be baptized over. No matter how they've been baptized, they had to come be baptized again. मगर बाइबल कहती है कि आपको जरूर ही यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए, तो इसका मतलब है आपको जरूर ही इस तरीके से करना चाहिए. पालूस हुक्म देता है इन्हें बपतिस्मा दिया जाए. कोई मसला नहीं कि उन्होंने कितने ही बपतिस्मे ले रखे थे, उनको दोबारा बपतिस्मा लेना था. Jesus Christ, John the Baptist, he said that won't work no more, you got to come be baptized again. Hallelujah. And they had to do it before they received the Holy Ghost. It was God's program. उन्होंने बिल्कुल उसी इंसान से बपतिस्मा लिया था जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, यानी यूहन्ना अस्तबागी से. उसने कहा वो कोई और काम नहीं करेगा, आपको दोबारा बपतिस्मा लेने को आना है. और उन्होंने रूल को हासिल करने से पेशतर ऐसा ही किया था. ये खुदा का मंसूबा था. I might go just a little deeper in that tonight. Why? Jesus keeps His word. Do you believe that? I've printed all of you sure this morning, but I want to lay a little more on that. आज रात मैं इससे थोड़ा ज्यादा गहराई में जाना चाहता हूँ. क्यों? इसलिए कि खुदावंद यीशु अपने कलाम में रहता है. क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? अब इस शुभ यहाँ आप तमाम का होना खूबसूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी मजीद बात करूँ. Why would Paul command that after it had been done? Paul said, even if an angel from heaven come and preached anything else, let him be accursed. इसके हो जाने के बाद पालूस ने क्यों कहा? पालूस ने कहा यहाँ तक कि अगर आसमान का एक फरिश्ता भी आए और इसके अलावा कुछ बयान करे तो मलाउन हो. Now you say we got new light on it. No, you haven't. That's what the devil come to Eve with, some new light. You don't need no new light. You need to walk in the light that God's already put here. That's all. अब आप कहते हैं हमने इसके ऊपर नई रोशनी हासिल कर ली है. नहीं, आपके पास रोशनी नहीं है. जैसे कि शैतान हवा के पास किस चीज के साथ आया? वो कुछ नई रोशनी के साथ आया. आपको नई रोशनी की जरूरत नहीं है. आपको जरूरत है उस रोशनी में चलने की जो खुदा ने पहले से यहाँ रखी है. ये ठीक है. Now, watch this just how simple. When they come down from Mount Transfiguration, Jesus said to His disciples, who does man say I the Son of Man am? अब देखें ये कैसा सादा है. जब वो सूरत तब्दीली के पहाड़ से नीचे आए तो यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? One said, you're Moses or Elijah, one of the prophets. He said, who do you say? He said, Peter said, thou art Christ, the Son of the living God. एक ने कहा मूसा, एलिया या नबियों में से एक हैं. उसने कहा तुम क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है. He said, blessed art thou, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you. See, it doesn't come through seminaries, it doesn't come through denominations. यीशु ने कहा मुबारक है तू शमौन बर यूना, गोश्त और खून ने ये तुझ पर जाहिर नहीं किया. ये सेमिनरी के जरिए नहीं आया, ये तंजीमों के जरिए नहीं आया. Flesh and blood has not revealed this to you. You never learned through any school of theology. But my Father which is in heaven has revealed this to you. गोश्त और खून ने ये तुझ पर जाहिर नहीं किया. तुमने इसे कभी भी किसी थियोलॉजी स्कूल के जरिए नहीं सीखा, लेकिन मेरा बाप जो आसमान पर है उसने तुझ पर जाहिर किया. And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. A spiritual revelation of who He is. और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे, यानी एक रूहानी मुकाशफा पर कि वो कौन है. Notice, and I say that thou art Peter, and I'll give unto thee the keys to the kingdom. And whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. Whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven. गौर कीजिए, और मैं कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधता है मैं उसे आसमान पर बांधूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलता है मैं उसे आसमान पर खोलूंगा.
Now he had to keep his word or he wasn't God. अब इसे अपने कलाम पर कायम रहना है, वरना वो खुदा नहीं। Now, and when he did that, a few days later he was crucified, rose, ascended up into heaven, and Peter opened the gospel on the day of Pentecost. Did he do it? Certainly he did. अब जब उसने ऐसा किया तो कुछ दिनों के बाद वो मसलूब हुआ था और वो जी उठा और आसमान को चला गया, और पतरस ने पेंतीकोस के दिन खुशखबरी को खोल दिया। क्या उसने ऐसा किया? पतरस ने यकीनी तौर पर ऐसा किया। Now watch, they was all mocking at him because they were filled with the Spirit. They were called heretics, holy rollers, or some kind of a name like that. And they even laughed and said, "These are full of new wine." अब देखें, जब उसने ऐसा किया, तमाम लोग उनको हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि वो सब रूलकुश से भरे हुए थे। वो उन्हें बिदती, जनूनी या इस तरह का कोई और नाम पुकारते थे, और यहाँ तक कि वो हंसते और कहते, ये ताजा मै के नशे में हैं। And Peter, standing up in the midst of them, lifted up his voice and he said, "Man and brethren, hear my voice, hear my words, and hearken unto me." और पतरस उनके दरमियान खड़ा हुआ और अपनी आवाज को बुलंद किया और उसने कहा, भाइयों, मेरी आवाज सुनो, मेरी बातों पर कान लगाओ। These are not drunk like you suppose they are. This is just the third hour of the day, but this is that which is spoken of by the prophet Joel. ये मैं के नशे में नहीं है जैसे कि तुम समझते हो, ये तो दिन का पहर ही है, लेकिन ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत फरमाई गई थी। And it shall come to pass in the last days that I'll pour out of my spirit. And what he would do upon his sons and his daughters, his handmaids and so forth in the day. आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह अंडेलूंगा, उसी तरह उन दिनों में अपने बेटों और बेटियों पर और अपनी बंदियों पर भी अंडेलूंगा। And when they began to hear this, they were cut at their heart. For they heard a man that didn't know his ABCs, yet they had to take notice to him. No, he had something inside of him burning him up. The Holy Spirit. और जब उन्होंने ये सुनना शुरू किया तो उनके दिलों पर चोट लगी, क्योंकि एक ऐसे इंसान को जब उन्होंने सुना जो कि अपनी ABC को भी नहीं जानता था, उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान दिया, ये जानते हुए कि इसके अंदर कुछ है, रुलकुस जिसने उसे आग से लबरेज कर दिया था। Stopping would be like trying to put a fire out on a dry building on a windy day. You couldn't do it. He was filled with the Holy Spirit. इसे रोकिए, क्यों ये कोशिश कर रहा है कि तेज हवाओं में इस खुश्क इमारत में आग लगाए? आप इसे रोक नहीं सकते, वो रुलकुस के साथ भरा हुआ था। And what did he do now? They said, "Well, man and brother, what can we do to be saved?" Now watch out, Peter. You have the keys to the kingdom. See? और अब उसने क्या किया? उन्होंने कहा, ठीक है, अब भाइयों, हम क्या करें कि निजात पाएं? अब गौर कीजिए, पतरस, तेरे पास बादशाही की कुंजियां हैं, समझे? Now when Jesus rose on the third day, he did not have the keys to the kingdom of heaven. Did you know that? He said, "I got the keys to death and hell, but not to the kingdom because they had been given to Peter." अब जब यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो उसके पास आसमान की बादशाही की कुंजियां नहीं थी। क्या आप इस बात को जानते हैं? उसने कहा, मैंने मौत और आलम रवा की कुंजियां ले ली हैं, लेकिन बादशाही की नहीं, क्योंकि ये पतरस को दी जा चुकी थी। Now he said, "Well, Peter, whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven. What you bind on earth, I'll bind it in heaven." अब यीशु ने पतरस को कहा था, जो कुछ तू जमीन पर खोलता है मैं उसे आसमान पर खोलूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधता है मैं उसे आसमान पर बांधूंगा। Now here he stands with the keys to open up this blessed thing to the world, and here he's got the keys in his hand, and they're asking, "What can we do to be saved?" अब यहाँ वो कुंजियों के साथ खड़ा है ताकि इस मुकद्दस चीज को दुनिया के लिए खोले, और यहाँ कुंजियां उसके हाथ में हैं, और वो लोग पूछ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं कि निजात पाएं? Now, no matter what the apostles said to do, God has to recognize it in heaven if he give him that authority. अब कोई मसला नहीं कि रसूल ने क्या कहा कि करो, अगर खुदा ने पतरस को ये इख्तियार दिया था तो आसमान में उसकी शनाख्त कर चुका था। Now Peter said, "Repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." Amen. Is that right? अब पतरस ने कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, और तुम रूल कुछ इनाम में पाओगे। क्या ये दुरुस्त है?
And that's the reason. The keys turned in heaven to any other name, any other way, any other form. It turned on earth and it turned in heaven, or Jesus didn't keep His word to Peter. और यही सबब है कि आसमान में कुंजियां किसी दूसरे नाम से, ना ही किसी दूसरे तरीके से घूमती हैं, ना ही किसी दूसरी किस्म से। यही जमीन पर घूमती हैं और यही आसमान पर घूमती हैं। या फिर यीशु ने अपना कलाम पतरस को दिया ही नहीं था। And every place in the Bible they was baptized. After that they were baptized in the name of Jesus Christ. और इसके बाद बाइबल में हर जगह उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। And those who were baptized before that had to come and be baptized over again in the name of Jesus Christ to get the Holy Ghost. That's correct. It still runs the same. और जिन्होंने उससे पहले बपतिस्मा लिया था वो दोबारा आते और उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाता ताकि रूल कुछ हासिल करें। यही दुरुस्त है। इसे इसी तरह रवा रहना है। So if we are teaching baptism in the name of Father, Son, and Holy Ghost, it's false prophecy. Now, I don't want to hurt you, but I got to pin this down so this church will know what. बस अगर हम बाप बेटे रूल कुछ के नाम में बपतिस्मे की तालीम देते हैं जो कि झूठी नबूवत है। अब मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने इसे मजबूती से पकड़ा है। इसी तरह कलीसिया इसे जानेगी। We're not here as a bunch of illiterate crackpots. We know where we're standing in the Word of God. See? We know. हम यहाँ ऐसे नहीं जैसे जाहिल और टूटे हुए बर्तन। हम जानते हैं कि हम खुदा के कलाम में कहाँ खड़े हैं। समझे? ये हम जानते हैं। I challenge anybody to show me one place where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Now you go listen to false prophecy or the truth. Search the scriptures. It's up to you. मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी मुझे एक ऐसी जगह दिखाए जहाँ किसी को बाप बेटे और रूल कुछ के नाम में बपतिस्मा दिया गया था। अब आप झूठी नबूवत सुन रहे हैं या सच्चाई को? कलाम मुकद्दस में इसकी तलाश करें। ये आप पर मुनस्सर है। Show me where one person in the Bible, where a church was ever ordained a denomination in the Bible. Show me the Bible where they ever ordained a woman preacher. मुझे एक भी शख्स बाइबल में कहीं दिखाएं जहां कलीसिया ने बाइबल में एक तंजीम को मुकर्रर किया था। मुझे बाइबल में दिखाएं कहां एक औरत को मनाद मुकर्रर किया गया था। Show me the Bible where all these things that we've been talking about ever was ordained in the Bible. They're not there. मुझे बाइबल में दिखाएं ये सारी चीजें कहां हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। बाइबल में कहां मुकर्रर थी? वो इस जगह नहीं है। Tell me one place you go to a denomination. Well, when the Methodists raised up, they preached sanctification. That's good. But when they did that, they made a denomination that settled it. मुझे एक भी जगह बताएं जहां एक तंजीम पाते हैं। ठीक है, जब मेथोडिस्ट उठ खड़े होते उन्होंने पाकीज़गी को बयान किया, ये अच्छा है। लेकिन जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने एक तंजीम बना ली और इसे कायम कर दिया। That's the reason the Bible said you got a name. You say, I'm a Christian. Well, what denomination do you belong to? यही सबब है कि बाइबल कहती है तुमने एक नाम पा लिया। आप कहते हैं मैं एक मसीही हूँ। ठीक है, तो फिर तंजीम के साथ आपका क्या ताल्लुक है? You say a Methodist? Well, you're a prostitute then. I'm a Baptist? Prostitute. Pentecostal? You're a prostitute. You belong to that church. आप क्यों कहते हैं मैं एक मेथोडिस्ट हूँ तो फिर आप एक कस्बी हो? मैं एक बैप्टिस्ट हूँ तो फिर आप एक कस्बी हो? मैं पेंतीकोस्टल हूँ तो फिर आप एक कस्बी हैं। आप उस कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं। You should belong to Christ. Got no business saying Methodist, Baptist. If you're a Christian, you're a Christian at heart. आपका ताल्लुक मसीह के साथ होना चाहिए, ना कि कारोबार करने वालों की तरह कहें मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ। अगर आप एक मसीह हैं तो आप दिल से एक मसीह हैं। Every one of those denominations can produce children. Children of God, that's right. But when you think you're going to heaven just because you're a Methodist or Baptist, you're wrong. And that's the reason we stayed out of that thing. इनमें से हर एक तंजीम खुदा के बच्चे पैदा कर सकती है, ये ठीक है। लेकिन जब आप ये सोचते हुए आसमान को जा रहे हैं क्योंकि हम मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट हैं, तो आप गलती पर हैं। और यही सबब है कि हम इस चीज से बाहर ठहरे हुए हैं। Why can't the Baptist say, I asked a Methodist man here around the Fiesta just so long ago. He said the only thing we got against you hang around the Pentecostals. क्यों बैप्टिस्ट इस बात को नहीं समझते? मैंने यहाँ एक मेथोडिस्ट आदमी से पूछा जो काफी अरसा पहले एक मजमून लिख रहा था। उसने कहा एक ही चीज है जो हमें आपके खिलाफ करती है कि आप पेंतीकोस्टल ग्रुप के साथ लटके रहते हैं। I said, who's we? We Methodists. मैंने कहा हम कौन हैं? हम मेथोडिस्ट हैं।
I said, well, I'll tell you what I'll do. I'll come to your city and you let the Methodist sponsor it. Oh, said, of course we couldn't do that. That's what I thought. मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करूंगा। जब मैं आपके शहर में आऊंगा तो आपकी मेथोडिस्ट कलीसिया मुझे स्पॉन्सर करेगी? ओ, उसने कहा, बेशक हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, ये वैसा ही है जो मैंने सोचा। I stay with the Pentecostal because the Pentecostal believes it. Right. They rally around it. They're the ones drawing the benefits of it. मैं पेंतीकोस्टल के साथ रहता हूँ क्योंकि पेंतीकोस्टल इस पर ईमान रखते हैं। ये ठीक है, वो इसके चौगिर्द इकट्ठे होते हैं। ये वो लोग हैं जो इससे फायदा उठा रहे हैं।